Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to start my first lecture on the subject Starch Chemistry and Technology. Correct? Are 3 to 1, and you know there is a severe problem of corona here, so we have to complete our lecture online. So today I have prepared my first lecture video and will send to you today night, and you can learn about this, and you can ask any question anytime from on mobile. So this is a slide. I recommended some books for you for Starch Chemistry and Technology. Here 3 books are available online. You can download these books and take material from it, or if you can't download, you can ask me. I will download it and send to you through WhatsApp group. So first I want to clear you the aim of this subject. The aim of the subject is to familiarize all students about starch and their application in different food products. And the objective of this subject, here are the main three objectives. First is we must know about the knowledge of starch chemistry, its properties, and about starch pastes and gel, and the production of modified starches and their utilization in different food products during processing. And the third is the production of starch sugar by acidic and enzymatic methods. So dear, first of all, we must know about the starch. What is starch? I am starting from the main source of starch. Then we will come to a starch word and its application. As you know, the major source of the starch is wheat, means cereal. 70% starch present in wheat. 70%, a huge amount. There it's a huge amount present in wheat. So we will take starch from wheat easily. Other sources are also potato, wheat, rice, maize, and other foods such as cassava. So starch, you must know, starch is a polymeric carbohydrate, polysaccharide carbohydrate consisting of numerous glucose units joined by glycosidic bonds. This polysaccharide is produced by most green plants as energy storage. It is the most common carbohydrate in human diet and is contained in large amount from staple foods, potatoes, maize, rice, wheat, as well as grain, amaranth wheat. Dear students, starch properties. Starch is a white, tasteless, odorless powder that is insoluble in cold water. It consists of two type of molecules, amylose and amylopectin. Now you must know where is this word is originated. The word starch is from Germanic root with the meaning strong, stiff, toughen, strengthen. Considered to be condensation polymer of glucose. Now crystalline white, these are the properties of
insoluble in cold water. Its density is 1.5 gram per centimeter cube. Primary sources of storage in cereal grains. Starch is the major carbohydrate reserve in plant tuber and seed endosperm. I already told you that 60 and 75% of the grain is starch. Overall, it provides 70 to 80% of calories consumed by humans worldwide. Mainly starch granules are deposited in seeds, roots, tubers and stem pith of the animal. It consists of two molecules. I already told you, amylose and amylopectin. Amylose is just 20 to 30% and amylopectin is 70 to 80%. So we must know about the history of the starch. It's just, I will describe it in brief form. You must know the history. It's a journal, it's not scientific or logical. You have to just read it and remember it. So wheat starch paste was used by Egyptians to stiffen cloth and during weaving linen and possible as glue. Romans इनको यूज करते थे as a cosmetic cream powder and to powder the hair and to thicken sausages. ठीक है. पर्शियन और इंडियंस इसको यूज़ करते हैं डिशेस में बेटा, और सिमिलर टू कोमिथाई वीट हलवा, एक कोई स्पेशल उनका होगा प्रोडक्ट उसमें यूज़ करते हैं. और चाइना में ये विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर, जब हम जो पेपर हुआ है, राइस स्टार्च वाज यूज्ड एज अ सर्विस ट्रीटमेंट ऑफ द पेपर. सो सम फंक्शन ऑफ दिस स्टार्च वी मस्ट नो. अगर हमें फंक्शन इसके पता होंगे बेटा तो हम इसकी इम्पोर्टेंस के मुतालिक, इसकी सिग्निफिकेंस के मुतालिक हम जान सकते हैं. तो यू कैन सी हेयर इन द स्लाइड द फंक्शन ऑफ स्टार्च. यू नो स्टार्च इज अ वर्सटाइल एंड चीप. बहुत सस्ती है. पाकिस्तान में इसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं. वीट के अंदर से आप 70% तक ले सकते हैं. इसके अलावा मेज़ में है काफ़ी. उसके अलावा कुछ फूड में, बनाना में जैसे या दूसरों में भी पाई जाती हैं. तो इट्स अ वर्सटाइल. इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और चीप है, चीप सोर्स है. हैज़ मैनी यूज. सब जेलिंग एजेंट, एज अ जेलिंग एजेंट ये यूज़ हो सकता है. थिकनर के तौर पे हम किसी सॉसेसेस में, सूप में या किसी भी प्रोडक्ट में थिकनिंग एजेंट के तौर पे भी इसको डाल सकते हैं. इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वाटर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी स्टीयरिंग एजेंट भी है. किसी चीज़ को या ब्रेड को, स्पेशली ब्रेड को ख़राब होने से रोकता है. एज अ टेक्सचायर भी यूज़ हो सकता है और इमल्शन के तौर पे भी, स्टेबलाइज़र के तौर पे भी यूज़ हो सकता है. तो इट्स अ वर्सटाइल प्रॉपर्टीज़, वर्सटाइल नेचर. नाउ यू कैन सी द मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च इज मेज, पोटैटो, व्हीट. मेजर सोर्सेज में ये सोर्सेज हैं. मोस्टली सीरियल में है. उसके अलावा पोटैटो में ज़्यादा पाया जाता है. और माइनर सोर्सेज में आप कुछ सीरियल भी कंसीडर कर सकते हैं. सॉरगम हो गया, राइस हो गया, और इसके अलावा स्वीट पोटैटो में भी ये दीज आर द माइनर सोर्सेज ऑफ स्टार्च. अब है मेनली के स्टार्च किन किन पार्ट्स में पाया जाता है. स्टार्च को मतलब प्लांट है तो प्लांट में उनके कौन कौन से पार्ट्स में ये इसकी अक्रंस है, प्रेजेंस है. तो यू कैन सी ऑन द स्लाइड दैट इट अकर इन एवरी टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ ग्रीन प्लांट्स लाइक रूट्स, लीव्स, ट्यूबर, सीड एंड फ्रूट. एवरी फ्रूट पार्ट इट इज प्रेजेंट. यानी हर प्लांट के पार्ट के अंदर, हर पार्ट के अंदर इसकी प्रेजेंस है. ये अकर है, अक्रस है. अब इन पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड टोबैको स्टोरेज ऑफ स्टार्च टेक प्लेस इन अंडरग्राउंड ऑर्गन. जो पोटैटो से रेलिवेंट फैमिली है, में स्वीट पोटैटो, पोटैटो ये दूसरे आते हैं, उसके अंदर ये अंडरग्राउंड पोर्शन में, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है. टेक प्लेस इन द अंडरग्राउंड ऑर्गन, जो उसके अंदर होते हैं उसमें होता है. और जो राइस है, व्हीट है, बीज, ये सीरियल में आएंगे सारे. आपको पता है 7 सीरियल हैं. हमने पहले भी कोर्स में पढ़ा है. उसमें राइस, व्हीट, मेनली मेज, सॉरगम,
बार्ले ओट मोस्टली ये वीट में और राइस में और मेज़ में होता है, बाकी सीरियल में ये माइनर क्वांटिटी में होता है, क्योंकि बाकी उसमें सीरियल में सॉर्गम बार्ले ओट में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि वीट और उसमें स्टार्च और मेज़ में वीट मेज़ और राइस में ये स्टार्च ज़्यादा होते हैं। और इन तमाम सीरियल में इट इज़ प्रेजेंट इन सीड पार्ट ऑफ द प्लांट। और starch also constitutes the major portion of the carbohydrate of legume seeds. कुछ जो क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेज, राइस एंड सॉर्गम आर कल्टिवेटेड फॉर देयर स्पेशल इनकी स्टार्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आम स्टार्च से थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो ये स्पेशल कल्टिवेट किए जाते हैं। कुछ सीरियल हैं फॉर एग्जांपल कंटेन स्टार्च विद नो माइलोज फ्रैक्शंस में माइलोज नहीं होती, तो ऐसी ऐसी वैराइटीज डेवलप हो गई हैं, मॉडिफाइड आ गई हैं, जिसमें अमाइलोज कंटेंट को ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ अमाइलोपेक्टिन कंटेंट होते हैं। और कुछ प्लांट ब्रीडर ने ऐसी वैराइटीज़ भी डेवलप की हैं जिसमें 50 to 80% सिर्फ अमाइलोज कंटेंट होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन कंटेंट को हिंडर कर दिया गया उसमें कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू वो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंट फैक्टर कह लें, फैक्टर वर्ड अच्छा, फैक्टर के तौर पे कि इन फैक्टर्स की वजह से अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में चेंजेस आती रहती हैं। कौन से फैक्टर हैं वो, उनमें मेन एज है, सॉइल है, वैरायटी है, क्लाइमेट है। अगर ये फैक्टर चेंज होंगे, कम या ज़्यादा होते रहेंगे, तो उसकी वजह से अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कंटेंट भी साथ साथ वेरी करते रहेंगे। बेटा ये आज का जो पहला लेक्चर है, इसमें हमने जस्ट ब्रीफ अबाउट स्टार्च और ये चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसमें अब हम आगे थोड़ा से मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं कि उनमें कितने स्टार्च परसेंट प्रेजेंट है और बाकी कंटेंट्स कितने हैं। ये जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू हैव टू नो और रीड इट अबाउट ओनली द स्टार्च कंटेंट। बाकी पे आपने फोकस नहीं करना, बाकी भी खैर सिंपल जो है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने ज़्यादा अगर फिल इन दी ब्लैक्स में या आपका अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है या कोई वाइवा होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वी हैव टू फोकस ऑन द स्टार्च कंटेंट ऑफ डिफरेंट फूड्स। अब आप इसमें देखें कि स्टार्च भी है, मॉइस्चर भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी हैं, फाइबर, स्टार्च, ये सारे मेन हैं कंटेंट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्च का वर्ड गलती से 2 दफ़ा आ गया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन को आप भूल जाएं, लास्ट वन को आप याद रखें। गलती से टाइप हो गया है बेटा, इसको करेक्शन कर लें आप। इसमें आप पोटैटो में देखें 77% स्टार्च है, 77% स्टार्च है, और 71% मेज़ में है, 74% वीट में है, 77% टोबैको में है और 71% बैक्सी मेज़ में है। तो ये आपने बस रट्टा ही लगाना है, इसमें कोई ख़ास टेक्निकल या साइंटिफिक चीज़ नहीं है जो हम याद करेंगे। इसको आपने गो थ्रू हो जाना है। हो सकता है ये फिल इन दी ब्लैंक्स में इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपको याद करना चाहिए। एक दफ़ा गो थ्रू आप अच्छी तरह हो जाए। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पे जो है कि कुछ के जो उसके रूट्स हैं या ट्यूबर्स हैं, उसमें जो सीरियस के, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं या लिपिड कंटेंट कम होते हैं, उसकी वजह से स्टार्च की वेरिएशन होती रहती है। अब कुछ स्टार्च की वैराइटीज़ हैं, वैराइटीज़ ऑफ स्टार्च, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं हर उसके। तो इसमें यह है इस स्लाइड में बेटा कि irrespective of all sources, all starch occurs in nature as a minute granule। ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, बाद पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, बाद ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। वो वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल वीट की जो स्टार्च है वो और तरह की नेचर की होगी, पोटैटो की है वो और तरह की होगी, किसी फ्रूट में स्टार्च है उसकी नेचर और होगी, उसके करैक्टरिस्टिक और होंगे। तो ये
वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। सोर्स चेंज होगा तो उसके करेक्टरिस्टिक भी बदल जाएंगे, ठीक है। वो उसकी जो पेरेंट्स है, उसकी ग्रेन्यूल्स की जब उसकी वो कैसे हम देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेनली जो कमर्शियल स्टार्चेस यूज़ होती हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में मोस्टली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में ट्यूबर्स, ऑल पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनमें ट्यूबर्स में आ जाते हैं। कॉमन सीरियल स्टार्चेस, इसमें मोस्टली वैसे तो तमाम सीरियल में होता है, लेकिन जो मेजर 3 सीरियल हैं, राइस, मेज़ और वीट, इनमें ये स्टार्चेस को हम कंसिडर करते हैं, इसको हम कॉमन सीरियल स्टार्चेस कहते हैं। और थर्ड वन इज़ वैक्सी स्टार्चेस, ये अदर देन स्वीट पोटैटो या अदर देन सीरियल जो वैक्सीज हम बाकी सोर्सेज से लेते हैं उनको वैक्सी स्टार्चेस कहते हैं। ये भी एक टेबल है बेटा, इसको भी आपने गो थ्रू होना है। ये भी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें से कोई चीज़ आ जाए, आपने इसको ओवरलुक नहीं करना, इसको पढ़ना है अच्छी तरह, ठीक है। इसमें इस स्लाइड में क्या है, इसमें बेटा साइज एंड शेप ऑफ डिफरेंट स्टार्चेज ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। जहाँ से अगर पोटैटो से लिया गया है उसकी टाइप क्या है, उसका साइज़ रेंज क्या है, साइज़ एवरेज क्या है, उसकी शेप कैसी है ग्रेन्यूल्स की। ना मेज से लिया गया है, वीट से लिया गया है, टबैको से लिया गया, वैक्सी मेज से लिया गया। अब यू कैन सी है, अगर पोटैटो से लिया गया उसकी टाइप ट्यूबर है, उसकी जो माइक्रोन साइज़ रेंज है उसके ग्रेन्यूल्स का 5 to 100 है, और जो साइज़ एवरेज एक कंसिडर करते हैं वो 28 माइक्रोन, यानी 5 और 100 के दरमियान जो एवरेज साइज़ हम लेते हैं वो 28 माइक्रोन है। और उसकी जो शेप है वो ओवल और स्फेरिकल है। इसी तरह मेज़ है, मेज़ मीन कॉर्न, उसमें जो उसका टाइप है वो सीरियल है, साइज़ रेंज 2 to 30 है, और जो इसका एवरेज साइज़ है वो हम कंसीडर करते हैं वो 10 है। उसके जो ग्रेन्यूल्स की शेप है वो राउंड और पॉलीगोनल होती है। इस तरह यू कैन सी हियर वीट, ये भी स्टार, इसमें भी सीरियल, इसका जो टाइप है वो सीरियल है। इसमें भी 1 to 45 जो माइक्रोन इसकी रेंज है, और एवरेज जो हम मोस्टली केसेस में जो है एवरेज, इस तरह नहीं कि 1 और 45 को जमा करके 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं, एवरेज सब कंसिडर करते हैं। जो मोस्ट ऑफ केसेस में मोस्ट ग्रेन्यूल्स का साइज़ है वो 8 है, और इसमें राउंड और लेंटिकुलर है, राउंड इसका जो शेप है। इस तरह टोपैटो है, ये भी रूट में आता है इसकी टाइप, और इसमें 4 to 35 माइक्रोन साइज़ है, रेंज है जो, और 15 माइक्रोन इसकी एवरेज साइज़ है, और इसकी जो शेप है ग्रेन की ओवल और ट्रंकेटेड है। इस तरह वैक्सी मेज़ है, वो सीरियल आता है, इसमें 3 to 26 इसकी साइज़ माइक्रोन रेंज है, लेकिन जो एवरेज है वो 10 माइक्रोन है, और राउंड और पॉलीगोनल है। हाँ, तो ये 10 को रटे वाली चीज़ें हैं, यही यहाँ भी आपने रटा है कि 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च मोस्टली फ्रॉम मेज, यानी टोटल अगर हम इसकी एस्टिमेट लगाएं तो 75% दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड टोटल प्रोडक्शन है स्टार्च की, उसका जो 75% है वो मेज से लिया जाता है, मेज कॉर्न से, इसको हम उर्दू में या अपनी लैंग्वेज में छल्ली भी कहते हैं, जो हम दाने खाते हैं। तो उसमें से जो 75% ऑफ स्टार्च इज कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज सिरप, ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप एंड डेक्सट्रोज। आगे फर्दर उसकी यूटिलाइजेशन है मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स में, या कैसे हम वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। 3% ऑफ टोटल पोटैटो प्रोड्यूस इन वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग टू स्टार्च, यानी पोटैटो सिर्फ 3% है, और उसकी जो प्रोडक्शन है वो 3 मिलियन टन्स है थ्रू पोटैटो फैमिलीज। एंड 0.4% ऑफ द स्टार्च टोटल वीट प्रोड्यूस इन वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग टू, यानी टोटल जो वीट है उसका 0.4% स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपको सिर्फ बेटा रटा ही लगाने वाली चीज़ें, इसमें कोई ख़ास टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो यहाँ तक बेटा आपका था आज का फर्स्ट लेक्चर। यहाँ तक स्लाइडें जितनी भी हैं, ये 16 स्लाइड तक आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसको आप पढ़ें, जब गो थ्रू हो जाएंगे तो मैं सेकंड लेक्चर अपलोड कर दूँगा, वो भी आप कह लें कि रेलिवेंट टू दिस स्टार्च ही होगा। वो इससे आगे जो फर्दर कंटेंट होंगे उनको हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। ये 15 जुलाई तक हमने ऐसे ही चलना है, इसमें 18 से 20 लेक्चर होंगे आपके,
और उसी तरह अगर पॉसिबल हुआ तो एग्ज़ाम हुआ तो इसी में से हो जाएगा। आपने इसको गो थ्रू होना। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप मुझे फ़ोन पे या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी तरीके से आप फ़ोन करके या इंटरनेट के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी भी टाइम जैसे टेक्स्ट मी एंड आस्क मी के सर वी आर आस्किंग वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, तो मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा और आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। इसको पढ़ें। सेकंड लेक्चर भी कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।